بیٹھ جاؤ میر صاحب, بیٹھ جاؤ. آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اچھا جی, کل کی لانگ مارچ کے حوالے سے ٹھیک ہے, جب آپ ریڈی کہیں گے تو. ساڑھے 6 کا ٹائم, 7 بجے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لے کے اور ایک بڑے مقصد کے لیے آج ہم لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ جو سینٹرل پنجاب ہے, جس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں, ہم آج یہاں سے حلقہ NA 126, جہاں سے میں رکن قومی اسمبلی ہوں, ہم اپنے تمام کارکنان کے ساتھ آج رات کو ہی نکل رہے ہیں اور گجرانوالہ میں جا کے پڑاؤ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہزاروں لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں, یہ گجرانوالہ میں رات کو رہیں گے اور صبح 7 بجے چندہ قلعہ گجرانوالہ سے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سفر کا آغاز کریں گے. اور گجرانوالہ سے آگے جی ٹی روڈ پر جتنے اضلاع ہیں, گجرات ہے اور ارد گرد بھی جتنے ہیں, جس کے اندر نارووال اور سیالکوٹ بھی شامل ہے, وزیر آباد شامل ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ملتے چلے جائیں گے. اور جتنے اضلاع ہمیں راستے میں, سب کے قافلے جوائن کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جی ٹی روڈ کی جو 400-500 سال کی تاریخ ہے, اس میں اتنا شاندار عوامی انقلاب پہلے اس جی ٹی روڈ نے نہیں دیکھا ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں کل ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ صبح 7 بجے ٹھوکر نیاز بیگ سے نکلیں گی اور وہ موٹر وے کی جانب لاہور کا جلوس لے کے جائیں گی, جبکہ میں جی ٹی روڈ سے, جو جی ٹی روڈ کے اضلاع ہیں, گجرانوالہ سے چندہ قلعہ سے شروع کر کے جی ٹی روڈ کے جو ریلی ہے اس کی قیادت کرتے ہوئے تمام قافلوں کی, تمام اضلاع کی انشاءاللہ تعالی ہم پنڈی پہنچیں گے ایک عالی شان قافلے کی شکل میں. ہمارا مقصد ہے اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 7 ماہ میں بڑے گہرے گھاؤ لگے ہیں اس ملک کی سیاست کو, اس ملک کی اقتصادیات کو, معیشت کو, اس ملک کے انسانی حقوق کو, صحافی برادری کو بڑے گہرے گھاؤ لگے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں. یہ ملک ایک عظیم مقصد کے لیے بنا تھا اور تمام ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور تمام ادارے اگر اپنے دائرے میں رہیں گے تو ان کا وقار بھی بڑھے گا اور ان کی لوگوں کے اندر عزت بھی بڑھے گی. پچھلے 7 ماہ میں آپ نے دیکھا لوگوں کو اٹھایا گیا, صحافی حضرات کو دھمکایا گیا, لوگوں کو کال کوٹریوں میں بند کر کے ننگا کر کے مارا گیا, اور کیا کیا ظلم نہیں ہوا ہمارے اس پاک سرزمین کے ساتھ. تو پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا. اب ضرورت ہے کہ ان زخموں پہ مرہم رکھا جائے, اور اس مقصد کے لیے, اور صرف اس مقصد کے لیے عمران خان نے, سابق وزیر اعظم عمران خان, جو آج بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہے, اس نے آرمی چیف کے فیصلے کو تسلیم کیا اور ایک نیا ورق جو ہے وہ کھولا پاکستان کی تاریخ کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے بھلا دیا ہے. ہمیں اعظم سواتی کے ساتھ جو جرم ہوا, جو تذلیل ہوئی ان کے گھرانے کے ساتھ, وہ ہمیں یاد ہے. ہمارا بھائی ارشد شریف قتل ہو گیا, ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے. عمران خان عالم اسلام کا آج سب سے مقبول لیڈر, سب سے دلیر لیڈر, اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ان کے جسم کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا. ہم کیا بھلا سکتے ہیں کبھی؟ ہم نے دوبارہ یہ کبھی نہیں ہونے دینا. اور یہ قوم, دیکھیں ایک بات تو بڑی طے ہے جو آج سب کے سامنے عیاں ہونی چاہیے, اور یہ ویسے تو جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ اس کو پہلے سے جانتے ہیں, لیکن اگر کوئی تاریخ نہیں پڑھی کسی نے, تو یہ جو پچھلے 7 ماہ کے جو واقعات گزرے ہیں, انہوں نے ایک چیز تو بالکل عیاں کر دی ہے کہ بندوق کی طاقت کے ساتھ آپ عزت اور وقار نہیں کما سکتے.
बंदूक की ताकत के साथ ताकत देरपा नहीं होती. लोगों की राय के आगे, लोगों की आवाम की खल्के खुदा की उमंगों के आगे सर तस्लीम खम करना ही जमहूरियत का नाम है, और यही असल में इबादत का भी नाम है, खल्के खुदा के आगे. और हम यही चाहते हैं कि खल्के खुदा एक बात कह रही है, चीख चीख के कह रही है कि खुदारा इस मुल्क को बचाया जाए. आज हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब खड़ा है. पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में जंगें हो गई, कोरोना जैसी वबा आ गई, लेकिन जो आज जहाँ पे हमारी मईशत खड़ी है, इस मुकाम पे पहले कभी मईशत नहीं खड़ी थी. 16 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप है इस वक्त. आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, आजकल क्योंकि मईशत ज़्यादा डिस्कस नहीं होती मीडिया के ऊपर, हमारे दौर में तो 50 अरब रुपया माहाना FBR का टारगेट शॉर्ट पड़ जाए तो पूरे शोज़ हो जाते थे. LNG का एक कार्गो मिस हो जाए तो 10 दिन उस पर पूरी कैंपेन चला करती थी. आज आपके मुल्क में 16 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप है, जिसका मतलब है 16 अरब डॉलर चाहिए अगले 7 माह के अंदर डिफ़ॉल्ट अवॉइड करने के लिए. क्या किसी मौजूदा वज़ीर के पास कोई मंसूबा है? किसी ने आज तक दिया है? आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि आपके पास LNG की एक स्पॉट कार्गो का कोई परचेज़ नहीं है पिछले 5 माह के अंदर. ये जो सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें बिजली के घरों को कैसे चलाना है, चूल्हों को कैसे जलाना है? क्या तवानाई के वज़ीर ने कोई इसके ऊपर आज तक रोड मैप दिया है? किसी से ने पूछा है उससे? आपके मुल्क में सनत का और तिजारत का बदतरीन बहरान है. मैं चैलेंज से कहता हूँ, यहाँ पे सहाफ़ी लोग बैठे हैं, किसी एक को पता नहीं होगा कि आपका सनत का और तिजारत के वज़ीर का नाम क्या है. ये आलम आ चुका है इस मुल्क का, और ये वो मुल्क था जो तरक्की की बुलंदियाँ छू रहा था. पूरी दुनिया जिसकी तरफ देख रही थी, जिसकी मिसालें दी जा रही थी. तो हमने इस मुल्क को बचाना है, और इसके लिए आवाम से गुजारिश है कि कल मुझे जो GT रोड के इज़लां हैं, हम सुबह 7 बजे निकलेंगे वहाँ से. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सब इस बड़े मकसद के लिए हमारे साथ आएँ. और लाहौर, अहलियान लाहौर जो GT रोड से नहीं जाना चाहते, वो सुबह 7 बजे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ठोकर न्याज बेग पे ज्वाइन करें. और बाकी पूरे पाकिस्तान से जो KPK का जुलूस है, उसकी परवेज़ खटक साहब क़यादत कर रहे हैं. कराची से जो लोग आ रहे हैं, उनकी अली जैदी साहब क़यादत कर रहे हैं. चारों तरफ से इंशाअल्लाह ताला खल्के खुदा जो है वो एक जगह पर इकट्ठी हो रही है, पिंडी और फिर इस्लामाबाद. और सब की एक ही तमन्ना है कि सबको इज़्ज़त दें, लोगों की तज़लील मत करें, इस मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएँ, आज़म स्वाति के मुजरिम को पकड़ें, अरशद शरीफ के मुजरिम को पकड़ें, इमरान खान पर कातिलाना हमला कराने वाले के मुजरिम को पकड़ें. ये हमारी डिमांड है. बाकी चीज़ें मैं समझता हूँ कल जो इमरान खान साहब का ख़िताब है, उनके सियासी करियर का सबसे अहम ख़िताब होगा, और उसको सब गौर से ज़ाहिर है सुने. तो सारी कौम जो है वो वहाँ पे मौजूद होएगी. सिक्योरिटी का जो है वो हमने फुल प्रूफ अल्लाह के फजल से बंदोबस्त किया है. और इंशाअल्लाह ताला आज ये काफ़िला जो मेरा काफ़िला है, हम गुजरांवाला की तरफ रवाना हो रहे हैं. और सुबह 7 बजे चंदा किला से मैं GT रोड का जुलूस लेके एक मिनट यार. अच्छा चलिए. आप अपने हल्के को लेके आगे जा रहे हैं, अरशाद डोगर और मियां असलम इकबाल आपके साथ होंगे. यार वो जो मैंने आपको बताया कि लाहौर के कुछ लोग ठोकर न्याज बेग से जा रहे हैं, वो कल ठोकर न्याज बेग से जा रहे हैं. ये मुकामी इस वक्त सतह की सियासत नहीं हो रही, ये हम बैनुल अक़वामी और कौमी सतह की सियासत है. अच्छा मासब आपके साथ इमरान खान साहब की सेहत के मतलब थोड़ा सा बताएं, इस ताज़ा तरीन सूरत क्या है, अगर उनको बाय रोड जाना पड़ा तो इस काबिल है, और वहाँ जाकर जो उनको देखें हर्डल्स इस मामले सेहत के मामले को आ सकती है. देखें, जो इमरान खान साहब की ज़ाहिर है सेहत है, वो तो इजाज़त नहीं देती कि वो इस वक्त सफ़र करें. डॉक्टरों ने उन्हें मज़ीद 4 हफ़्ते के रेस्ट का कहा हुआ है. उनका जो हड्डी है, जो एक आपको पता है गोली जो थी वो उनकी टांग की निचली वाली जो हड्डी है उसमें लगी थी, और वो हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, और वो चिप हो गई थी बल्कि, जिसके ऊपर प्लस्तर लगे हुए हैं. तो उनको आराम का कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब पुरज़म है. वो समझते हैं कि ये मौका, ये इस वक्त तारीख़ी मौका है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं. और वो ये भी समझते हैं कि अगर वो इस वक्त पीछे हट गए तो जिन लोगों ने उन पर गोली चलाई थी वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे ना. फिर तो हम तो उनके मकसद से कामयाब नहीं होने वाले. और यही एक वजह है कि कल मैं उसी मुकाम से, उस मुकाम के करीब से शुरू कर रहा हूँ अपना जुलूस जहाँ इमरान खान साहब पर गोली लगी थी. उधर से ही GT रोड का इंशाअल्लाह ताला चंदा किला के करीब से सबसे बड़ा जुलूस निकलेगा. मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ उससे पहले जो बड़ा पहला सेंटर है गुजरांवाला का. खत्म कर दें कि लाहौर से आप लीड कर रहे हैं, आप हल्के की लीड कर रहे हैं, या एज अ सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल पंजाब. जी मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल
सेंट्रल पंजाब गुजरांवाला से लीड कर रहा हूँ। गुजरांवाला से जीटी रोड को मैं लीड कर रहा हूँ एज जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब, और लाहौर से एज प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब मोटरवे के जो रास्ता है उसको डॉक्टर यास्मीन राशिद करेंगे। तो हमने फैसला ये किया कि क्योंकि 2 रास्ते जाते हैं ना और दोनों पे इजला हैं, वहाँ पे भी बड़े अहम इजला हैं मोटरवे पे और जीटी रोड पे भी, तो दोनों पे हम चाहते थे क़यादत जो है वो बर वक्त मौजूद होए। तो हमने आपस में तकसीम कर लिया कि मोटरवे से डॉक्टर यास्मीन राशिद करेंगी और जीटी रोड से मैं करूँगा। अमार साहब, आप कितने लोगों का काफिला लेके जा रहे हैं, आपके साथ कितनी अफरादी कुव्वत होगी और लाहौर का टारगेट क्या है, जो टोटल आप लाहौर से कितने लोगों को? इस वक्त मेरे साथ कुछ 6 से 8 कोस्टर्स और दर्जनों गाड़ियाँ हैं जो जा रही हैं, और कल मजीद हमारे हलके से जो गाड़ियां हैं मेरे हलके से वो निकल के ठोकर न्याज बेग पे जाएंगी। आज मैं अपने साथ वो लोग 400-500 लोग वो लेके जा रहा हूँ जो मेरे साथ रात ठहरेंगे, मेरे हलके के लोग जो मेरे साथ गुजरांवाला में आज रात ठहरेंगे। कल लाहौर का टारगेट को 30 से 40 हज़ार है, और वो सुबह इंशाल्लाह ताला ठोकर न्याज बेग से निकलेगा, और 30 से 40 हज़ार हम समझते हैं कि गुजरांवाला जीटी रोड जो है वहाँ से कल इंशाल्लाह ताला। स्टेट बैंक ने आज जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और शरह सूद 1% मजीद बढ़ा दी है, इसका ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे और आम आवाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, अगर ये शरह सूद इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि आपका जो एक्सचेंज रेट है ना उसको सहारा दिया जा सके और महंगाई को कम किया जा सके। लेकिन मसला ये है कि जब किसी हुकूमत के पास कोई प्लान ना हो, ये तो शरह सूद जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपका रुपया तो कंट्रोल नहीं हो रहा। जब तक आप फाइनेंसिंग गैप को एड्रेस नहीं करेंगे, जो 16 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप आपका मौजूद है आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज में, आज जो आपने डेट सर्विसिंग करनी है, वो जब तक आप वो एड्रेस नहीं करेंगे, आपके मुल्क में महंगाई भी बढ़ती चली जाएगी, आपका रुपया कमज़ोर होता जाएगा और शरह सूद बढ़ती जाएगी। आपके सामने इस वक्त इंडस्ट्री तो तबाह हो रही है, लिक्विडिटी का क्राइसिस है, और वो बैंकों के पास जा नहीं रहे। बैंकों के पास जाते हैं तो वो 20% इंटरेस्ट रेट मांगते हैं, अब 21% मांगेंगे। तो मैं समझता हूँ कारोबार तो तबाह हो रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि सनत और तिजारत का वजीर कौन है इस हुकूमत का। पता नहीं कौन लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर लेकिन इलेक्शन की तारीख जो है वो फिर नहीं चलेगी इस पे क्या? देखें, राना सनाउल्लाह साहब तो राना साहब सनाउल्लाह ने ये बात की है ना, वो तो एक मुसल्लत शुदा एक जाली से वज़ीर हैं। बस हम दुआ करते हैं कि वो उनकी जो दिल की तकलीफ़ है अल्लाह उनको शिफा दे, उनको आराम करना चाहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ना तो देखें, जो इस सारी गेम के अंदर जो सबसे छोटा प्यादा है ना, जो बिला वजह शोर मचा रहा है, वो राना सनाउल्लाह है ना। उसकी अथॉरिटी है, वो कहीं और से ऑर्डर लेता है और बिला वजह वो बस शक्ल अपनी दिखा के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से ऑर्डर ले रहे हैं राना सनाउल्लाह, जिनसे आपका शरह कहीं वहाँ तो नहीं जो गैर सियासी हो? देखें, अब तो खैर एक ट्रांजिशन आ गई है, उम्मीद है कि इशारे आना बंद हो जाएंगे और न्यूट्रल्स जो हैं वो हकीकी तौर पर न्यूट्रल्स हो जाएंगे। जिस तरह हमारे मुल्क को आज़ादी नहीं हकीकी आज़ादी चाहिए, उस तरह हमें न्यूट्रल्स नहीं हकीकी न्यूट्रल्स चाहिए, और इंशाल्लाह ताला जब हकीकी न्यूट्रल्स हो जाएंगे तो इंतखाबात खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, आओ गड्डियाँ बैठो, पोस्टमैन बैठो। जा रहे हैं गुजरांवाला, चलिए। अल्लाह ताला